تو کیا لے گئے, وہ چلا گیا تھا کہ دکھاؤ یار کون سی سیمنری ہے. وہاں پر بیٹھا تھا پوپ کون تھا؟ ساؤل. ساؤل نے بولا, ان کے سامنے آئے کہ ایک بندہ پادری بننا چاہتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ جو جنگ ہے نا ابلیس کے خلاف, وہ یہ لڑنا چاہتا ہے. کہتا ہے بچہ لڑے گا؟ کہتا ہے ہاں یہی لڑے گا. کہتا ہے میں نے لڑنا ہے. کہتا ہے چلو لے کے آگے. یہ سیمنری کا سر پہ ہیلمٹ پہن لو, یہ پاؤں میں سیمنری کے جوتے پہن لو, یہ سیمنری کا وہ سپر پکڑ لو, تلوار پکڑ لو سیمنری کی, اب تمہیں کوئی نہیں کرائے گا. وہ کہتا ہے یار یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی, میں تو چل بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کوشش کی کہ چل پوپ کہہ رہے کر کے دیکھ لینے, فرق ہوا نہیں کچھ اس کا, اور اس نے اتار کر پھینک دیا. اس نے کہا نہیں پوپ صاحب اس سے کام نہیں چلے گا, جو میرے پاس ہے میرے اندر ہے اس سے کام چلے گا. اور اس کے اندر کیا تھا؟ ہاللویا, تعریف ہو خدا کی. ہاللویا, ہاللویا, پریز کرو خدا کی تعریف. سب اپنی بھرپور تعریف خدا کے قانون کو سامنے بلائیں گے. ہاللویا, پریز کرو خدا کی تعریف, پریز کرو. ہاللویا, سب بولیں ہاللویا, سب بولیں خدا ان کا نام مبارک. پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح کے ختم نام میں آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو عزیزوں بہنوں بھائیوں پیارے بچوں سلام قبول ہو, اور خدا آپ سب کو برکت بخشے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خاص طور پر آج کے دن کے لیے کہ اس نے ہمیں ایک اچھا اور بہترین دن دیا, اور ہمیں زندگی اور صحت دی, ہمارے بچوں کو ہمارے گھرانوں کو سلامتی میں برکت میں رکھا. اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں یہ خدا کی طرف سے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ ہماری زندگی جو ہے خدا کے لیے آج اس کے گھر میں یہاں تک آئی ہے. ہاللویا, یعنی ہم اس کے حضور میں چل کر ایک بوجھ, ایک پیار اور ایک محبت لے کر کے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم خدا ان کے گہرے اور میٹھے بھیدوں کو جان سکیں جو میرے اور آپ کے لیے ہی اس زمانے میں کہے گئے. ہاللویا, خدا آپ سب کو برکت دے. آئے میرے عزیزوں ہم دیر کے بغیر خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا رشتہ پڑھتے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ خدا ان کے کلام میں سے چند باتوں کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سچائی کو لیتے ہیں, ان گواہیوں کو, ان ٹیسٹمنیز کو لیتے ہیں, ان وٹنسز کو لیتے ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے یہاں پر قائم کی ہے. ہاللویا. آئیے چلتے ہیں خدا ان کے کلام اقدس میں سے نئے عہد میں چلیں گے اور مقدس پولس رسول کا افسیون کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں ہم جائیں گے. پریز لارڈ, تعریف ہو یسوع کے نام. چیپٹر 2 ہم نکالیں گے, باب نمبر 2 اور اس کی 19ویں آیت سے نیچے کی طرف پڑھیں گے. تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے. بلکہ مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو. جی. اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, اور نبیوں اور رسولوں کی نیو جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, تعمیر کیے گئے ہو. تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. ہر ایک عمارت مل کر مسیح میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. جی. اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے جی, تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو, اور تم بھی اس میں باہم یعنی مل ملا کے, آمین, گٹھ جوڑ کے ساتھ تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. ایک اور حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ خدا ان کے کلام اقدس میں سے, نکالیے گا پلیز. مقدس پطرس کا پہلا خط ہم نکالیں گے اور چیپٹر 2 ہم نکالیں گے, اور 3 آیت سے 8ویں آیت تک اسے ہم بآواز بلند یہاں پر تلاوت کریں گے. اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, اگر تم نے اے کلیسیا خداوند کے گریسفل, اس کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, پڑھیے, اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر, یہ مزہ ہے, اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر, ہاں جی, قیمتی زندہ پتھر جو کہ دنیا کا رد کیا اور خدا کا چنا ہوا ہے اس کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو. تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر یعنی مقدس خدا کا بنتے جاتے ہو. جی. تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر
ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ हाँ जी। जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। 8वीं आयत तक। चुनाचा किताब मुकद्दस में आया है चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, हाँ जी, जो उस पर ईमान लाएगा हाँ जी। हरगिज शर्मिंदा ना होगा। जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों हाँ जी। के लिए तो वो कीमती है, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया हाँ जी। वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। लेकिन जो ईमान नहीं लाते उनके लिए ये है कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। हुआ जी। और ठेस लगने का पत्थर, और ठोकर यानी ठेस लगने का, ठेडा लगने का पत्थर जी। और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। और ठोकर लगी लोगों को, इससे चट्टान है ये पत्थर ऐसा है कि ये अपने आप में एक पूरी रॉक है, चट्टान है जी। क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो नाफरमान इसीलिए होते हैं क्योंकि कलाम से उनको ठोकर लगती है, और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए। जी जनाब, वो प्री डेस्टिनेट ठोकर खाने के लिए हुए हैं ताकि उनको ठोकर लगे और वो बुरा मनाए और फाइनली वो छोड़कर चले जाएं और बोले ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे मेरे अजीजों, और इस कलाम की पूरा जो मुकाशफा है, रेवलेशन है, वो आपके दिलों तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि आपके जहनों तक नहीं, दिलों तक पहुंचे, क्योंकि ये वो पोर्शन है जहां से इब्लीस चुरा नहीं सकता, यहां से ले जाता है, यहां से ले जाता है, यहां पर और बहुत कुछ होता है। आमीन। और इस कलाम के सादर होने से आपकी जिंदगी की तमाम बैरियर्स, तमाम प्रॉब्लम, तमाम मसाइल जो हैं, तमाम दुख जो हैं, तमाम जो बेचैनियां हैं, मायूसियां हैं, वो आप इस कलाम के सादर होने से वो आपकी जिंदगी से दूर रहें। इस कलाम को कंसीव कीजिए, ये जरूर आपकी जिंदगियों में बरकत और खुशी को लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदावन आपके साथ हो। हालेलुया। सब बोले खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रेज गॉड। ऐसा कहते रहा करें। अगर आप अपनी जिंदगी में इसको रूटीन में ले आएंगे, अपने हर काम में कहेंगे खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। पाक कलाम में लिखा है दाऊद जो खुदा के दिल पसंद था, उसके बारे में लिखा है कि वो कहता था कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। और एक दूसरी जगह पे कहता है कि वो मेरी जान को पाताल में नहीं छोड़ेगा और मेरे मकदस यानी बदन के सड़ने की नौबत नहीं आने देगा। वजह क्योंकि है मेरी जान जिंदगी में खुदावंद को क्या है, मुबारक है। हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं तो कुछ होता है जिंदगी में, आपको शायद ना लगे, लेकिन आप जब कहना शुरू करते हैं और फील करते हैं तो कुछ हो रहा होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, ऐसा कहते रहा करें तो खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। आए हम आज की आवाज की तरफ बढ़ते हैं मेरे अजीजों। आज का इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं जरूरी समझता हूं कि आपको आज का जो मौजू है, टॉपिक है, वो समझा दूं, बता दूं। आज का हमारा मौजू है लिविंग स्टोन्स, जिंदा पत्थर। कौन से पत्थर? जिंदा पत्थर। पत्थरों के मुतालिक अगर बात की जाए तो पाक कलाम में बेशबहा जगहों पर, बहुत बेशतर जगहों पर पत्थर के बारे में तज़किरा हुआ है, जिक्र हुआ है। और आप बचपन से इस बात को सुनते आए हैं, लेकिन अगला स्टेप नहीं आपने पकड़ा। वो क्या है? जैसे कहा गया कि ईमान किससे पैदा होता है, और सुनना मसीह के। जब आप खुदा के कलाम से सुनते हैं तो सुन तो लेते हैं, लेकिन ईमान में लेकर, यहां पर क्यों नहीं बोले आप? बोले ईमान में लेकर नहीं आते, क्योंकि अगर आप ईमान में लेकर आए तो कुछ लगे, लोगों को नजर आए। हालेलुया। आदमी या भाई या बहन, आदमी की जब बात होती है तो इंसानों की बात होती है, मतलब औरत और मर्द दोनों की बात होती है। आदमी अपने फलों से पहचाना जाए। तरकोने का दरखत जड़ा त्रेक चो जड़ा निकलता है, वो अपने फल तो पहचानी जाती है कि तरकोना है। समझ आ रही गल दी? और बेर का दरखत जड़ा है वो भी पता चलता है, और सेब और इसी तरह माल्टे, ऑरेंज और दीगर कई चीजों के जो दरख्त हैं वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं। उनमें जितना कुछ भी आप हाइब्रिडाइज करते हैं, लगा दें दूसरी टहनियां, आमीन, ताकत कहां से आ रही होगी? जड़ से। और जड़ किसकी है? जेन्युइन सेब की जड़। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो टॉप के ऊपर जा रहा होता है, लगा होता है फल, वो सीधा जड़ से ऊपर टॉप पे जाता है, क्योंकि वही असली फल होता है। आमीन। तो आपकी जिंदगी में बहुत सी पेमंदकारियां लगा सकता है इब्लीस। बहुत सी पेमंदकारियां का मतलब आपको दुनियादार बना सकता है, आपको मॉडरेट कर सकता है, आपको कह सकता है कि नहीं ये साइंस का दौर है, ये बड़ा जबरदस्त दौर है, अब हमारा वो वक्त नहीं रहा जो हमारे बुजुर्गों का हुआ करता था।
میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ وقت نہیں رہا، لیکن یہ والا وقت کبھی ختم نہیں ہوا. یہ بائبل مقدس کا جو یہ وقت ہمیشہ چلتا ہے. یہ کبھی پاسٹ تھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی یہ فیوچر ہے. یہ پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے. جب بھی اسے کھولیں گے آپ کے لیے پریزنٹ ہوگا، حال ہی ہوگا. ہاللویا ہاللویا. کیونکہ جو آنے والا فیوچر ہے وہ کل کو ماضی ہو جائے گا. آمین. آج کا دن کل ہو جائے گا اور پھر آنے والا دن پھر کل ہو جائے گا. لیکن جو حال ہوتا ہے رہتا حال ہے، پریزنٹ ہی رہتا ہے. وہ کبھی نہ ماضی ہوتا ہے نہ کبھی فیوچر ہوتا ہے. آمین. نہ کبھی ماضی ہوگا نہ فیوچر ہوگا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ کلام کی روح سے بات کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک موجود ہی موجود ہوتا ہے، تھا اور آنے والا نہیں ہوتا. وہ ہمیں دنیا میں ٹائم فریم کے لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو تھوڑا سا انڈیفرنس نکال سکیں. تو زندہ پتھر یہاں پر ذکر ہوا. خداوند مقدس پولس کے ذریعے افسیوں کے خط میں کچھ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم باہم ایک دوسرے میں تعمیر کیے گئے ہو. کیسے؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ برائڈ چرچ کو کہہ رہا ہے، دلہن کلیسیا کو کہہ رہا ہے. یہ دلہن کلیسیا کیسے آئی؟ شارٹ سی بات ہے. مختلف مردہ پتھروں میں سے نکل کر آئی اور زندہ پتھروں کی بلڈنگ میں آ کر اپنی جگہ کے مقام کو ڈھونڈا اور وہاں پر لگ گئی. اسے لگا کہ میری جگہ یہاں پر ہے اور پھر مل ملا کے یہ باہم تعمیر ہو کر گٹھ جوڑ. سمجھتے ہیں گٹھ جوڑ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے باہم اتفاق رائے کے ساتھ یہ ایک بلڈنگ بنتے گئے، ایک برائڈ چرچ بنتے گئے. اور برائڈ چرچ جو ہے وہاں پر خداوند ہوتا ہے، وہ اس کا مقدس ہوتا ہے. آمین. ہاللویا. سب نے ہاللویا. اوکے. تو یہ جو زندہ پتھر ہیں یہ باہم مل کر گٹھ جوڑ کر کے مسیح کی کا جو مقدس ہے، اس کا جو گھر ہے وہ بنتے جاتے ہیں. آمین. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب یسوع مسیح یروشلم کی طرف تھے، ایک واقعہ، جب یسوع مسیح یروشلم کی طرف تھے جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ فقیہ اور فریسی تھے، علماء تھے. انہوں نے کہا کہ اے استاد ان سے کہہ کہ یہ چپ ہو جائیں جو لوگ ہوشانہ ہوشانہ کر رہے ہیں. واقعہ یاد نا آپ کو؟ ہوشانہ ہوشانہ کی للکار تھی اور فقیہ فریسی کہتے ہیں کہ استاد ان سے کہے کہ یہ چپ ہو جائیں. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ وہ مقام جو انسان کو دیا گیا وہاں پر انسان وہ پرفارم کر رہا ہے کہ نعرے لگا رہا ہے کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور ہوشانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ خاموش کر دے اس اقرار کو. یہ اقرار تھا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ ماننے کا. آمین. اب فقیہ فریسی عالم دین میں سے ابلیس کام کرنا شروع ہو گیا. ان کے علم کو ابلیس نے استعمال کیا اور ان کو ایک سوچ دی کہ اس کو روکو. اور جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی، یسوع سے کہا کہ ان کو بولو، جو تیرے ساتھ لوگ ہیں جو تیری تعریف میں کچھ کہہ رہے ہیں، ہوشانہ کہہ رہے ہیں، ان کو روکو. یسوع مسیح نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، زندہ پتھر ہیں. آمین. ایک ایسا حصہ ہے جو برائڈ چرچ کا ہے. اگر ایک حصے کو کسی کے دباؤ کی وجہ سے یسوع کی تعریف اور اس کی سچائی کو ماننے سے روک بھی دیا جائے تو ایک حصہ ایسا بیٹھا ہے جو دنیا کے تمام تر سسٹم سے نکال کر رکھا گیا ہے اور وہ زندہ پتھر ہیں. وہ ضرور چلائیں گے. آمین. اگر یہ چپ ہو گئے تو یہ چلائیں گے. اگر پینٹیکوسٹل چپ ہو گئے تو برائڈ چرچ چلائے گا. اگر کیتھولک چپ ہو گئے تو برائڈ چرچ چلائے گا. اگر یہوہ وٹنس چپ ہو گئے، سالویشن آرمی چپ ہو گئے، فلاں مشن جو مسیح کا دعویٰ تو کرتی ہے چپ ہو گئے کسی بھی دباؤ کی وجہ سے، تو زندہ پتھر برائڈ چرچ لیونگ سٹون جو ہے وہ چلائے گا. آمین. یہ چپ ہو گئے تو یہ چلائیں گے. کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ جن کے اندر زندگی کا کلام ہوتا ہے ان کے اندر زندگی کی جنبش ہوتی ہے. ہاللویا. اور جب زندگی کی جنبش آتی ہے تو پاک کلام میں رسول نے پہلے ہی کہا، ہم ماضی میں پڑھ چکے ہیں پچھلے دنوں میں، اس نے کہا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا؟ کون ہم کو؟ موت، ننگ، تلوار، بھوک، کال، وبا، کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے. اب بولو یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھگت نہیں سکتے، بھگتنا نہیں چاہتے. کیونکہ جب دباؤ آتا ہے، جب انفلوئنس آتا ہے، پرابلم آتی ہے، آمین، جب کسی طرح کا سٹریس آتا ہے تو لوگ اپنی آواز کو، سچائی کی آواز کو دبا جاتے ہیں، اپنے اچھے اقرار کو دبا جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں لیونگ سٹونز جن کے بارے میں مسیح کہتا ہے اگر یہ چپ ہوئے تو یہ بول اٹھیں گے. یہ فائنل ہے، یہ بالکل برگزیدہ اور چنیدہ ہوئے ہیں، یہ بلا ہوئے، چنیدہ کیے ہوئے اور پھر برگزیدہ کیے ہوئے. آمین. یہ سب پورشنز میں سے گزر کر آئے ہیں، یہ نہیں ٹلیں گے.
हालेलुया। तो ये यीशु जिनके बारे में कह रहा था, पाक कलाम में यीशु मसीह की हर बात के पीछे एक रेवलेशन छुपा हुआ है। मेरे अजीजों, वो जिंदा पत्थर थे जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि ये चला उठेंगे अगर कोई और चुप हुआ तो। आज हम अपने आप पर गौर कर सकते हैं क्या हम वो घर बना रहे हैं जिसके बारे में यहाँ पर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि हम वहां मिलकर तामीर होकर क्या बनते जा रहे हैं? मसीह का मकदस बनते जा रहे हैं, खुदा का घर बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? मुझे बताइए, अगर एक बिल्डिंग बन रही हो, 10 ईंटें मौजूद हो, आमीन, और 10 कहीं पर कारखाने में पड़ी हुई हैं, तो ईंटों की जरूरत है 20 की, तो 10 कहें हम अपनी मर्जी से आएंगे। मिस्त्री बोलेगा किधर है बाकी ईंटें, बताओ, क्या ख्याल है? इसका मतलब क्या? जितनी जरूरत है घर बनने की उतनी ईंटों का होना जरूरी है। हालेलुया। उतना ही उसके जितने भी वो मटेरियल होता है जो चाहिए होता है घर को बनाने के लिए, ईंटों में लगाने के लिए, उसका होना जरूरी है। मैं उन सारे मटेरियल्स को रुल कुद्स के नाम कहता हूँ, नेमतें कहता हूँ, उनका होना जरूरी है। तो वो ये जो जिंदा पत्थर हैं जो मसीह का मकदस बनते जा रहे हैं, ये असल में कोई और नहीं है, ये हमें आज की डेट में पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। खुदा पौलुस में से होकर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और जब खुदा समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो पत्थर दरअसल हम ही हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में खुदा का रूह काम कर सकता है। आमीन। तो क्या हम वो लिविंग स्टोन है, हम वो जिंदा पत्थर है जिनकी वजह से एक चर्च बनेगा? अगर हम में से हर एक भाई और बहन ये सोचना शुरू कर दे कि अगर मैं वहां पर ना हुआ तो वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होगी, अगर मैं वहां पर ना हुई तो वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होगी, फिर कोई भी किसी कारखाने में लेटा हुआ सुकून नहीं कर रहा होगा, बल्कि निकल कर आएगा और अपनी जगह में बैठेगा। क्योंकि जब रैप्चर होगा तो सबका होना, मौजूद होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद कोई मकदस बनाता है तो उसमें सबका होना बीच में जरूरी होता है, तभी तो वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है। हालेलुया। और फिर मुकद्दस पतरस बड़ी प्यारी बात यहाँ पर कर रहे हैं, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, तो वहां पर मुकद्दस पतरस भी इसी बारे में जोर दे रहे हैं कि हम वो जिंदा पत्थरों की जो मकदस है, एक ताबीर की जाने वाली जो बिल्डिंग है वो बनते जा रहे हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जो खुदावंद ने अपने लोगों के साथ मिलकर बनाई है, एक ऐसी बिल्डिंग जो खुदावंद ने अपने लोगों के तौर पर बनाई है, अपने घर उसमें रहने के लिए, मकदस के तौर पर। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, हाँ जी, उसके यानी आदमियों के रद्द हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, अच्छा, उसने कहा कि खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है। खुदावंद के मेहरबान होने का मजा क्या है? उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि जब वो हमें बुलाता है और हम उसकी बात पर ध्यान करते हैं और हम पानी का बपतिस्मा लेकर उसमें शामिल हो जाते हैं, और जब शामिल हो जाते हैं तो उसके घराने में चले जाते हैं, और जब घराने में जाते हैं तो कोई भी बाप अपने बच्चों पर हमेशा रहम करता है। हालेलुया। कोई ऐसा बाप नहीं जो रहम ना करे। तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका फजल होता है कि हमें उसने अबदियत के लिए बुलाया है और हम आ गए। ये उसकी मेहरबानी और उसका फजल है, और उसकी मेहरबान होने का हमने मजा चखा है। आमीन। यानी हम उस जिंदा पत्थर के पास आए हैं जो दुनिया ने जिसको रद्द किया था, और आप जानते हैं वो यीशु मसीह था जिसको दुनिया ने रद्द किया, और ऐसा नहीं था कि किया था, आज भी कर रहे हैं। उसका जिंदा पत्थर होने का मतलब यह है कि पहले वो एक फिजिकल फॉर्म में जमीन पर था और जिंदा पत्थर के तौर पर आया। हालेलुया। अब वो स्पिरिट फॉर्म के अंदर इस जमीन के ऊपर है, और आज भी उस स्पिरिट फॉर्म के अंदर मसीह को लोग रद्द कर रहे हैं। आमीन। उनको जो अच्छा लग रहा है, जैसे लिखा गया आखिरी जमाना में लोग अपने कानों की खुजली के मुताबिक उस्ताद बना लेंगे, मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं उनको अपना रहनुमा या अपना कायद बना लेंगे, और उसने कहा ये इसलिए होगा क्योंकि आखिरी जमाना के अंदर अबलीस जो है वो गुमराही के रूह को लेकर आएगा। आमीन। लेकिन जिन्होंने मसीह की मोहब्बत का, उसके मेहरबान होने का, खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा है, वो क्या करते हैं? जिंदा पत्थर के पास आते हैं। जी आगे पढ़िए। उसके यानी आदमियों के रद्द हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, हाँ जी, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। हाँ जी, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ, हाँ जी, जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। हाँ जी। चुनाचा किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून को कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, हाँ जी, और जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। हाँ जी। बस ईमान लाने वालों के लिए
तो वो कीमती है जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, हाँ। वही कोने के सिरे का पत्थर। आमीन आमीन। अब इसमें जो खास बात बताई जाने वाली है, जो समझने वाली है हमारी, कि हमारा जो जिंदा पत्थर है, जिसकी वजह से हम जिंदा पत्थर हैं, जिंदा पत्थर यीशु मसीह, जिसको लिविंग स्टोन कहते हैं, अगर हम उसमें से निकले तो हमारे अंदर भी वही जिंदगी है जो उसमें थी, लेकिन उसने अपने आप को एक पत्थर से तशबीह दी है। आमीन। फिर उसने कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और जो ये कहते हैं कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, उनको भी जिंदा पत्थर कहा है। मिसाल के तौर पर जैसे उसने अपने आप को नूर कहा है, तो उसने अपने लोगों को भी नूर कहा है। उसने कहा तुम भी दुनिया का नूर हो। आमीन आमीन। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह रोशनी है, तो उसने अपने लोगों को भी रोशनी से तशबीह दी है। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह के मुतालिक बहुत पहले लिखा गया कि यीशु मसीह सयून में कोने की सिरे का पत्थर ठहरा। आमीन। और उसको उस जमाने के लोगों ने रद्द किया। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, चूंकि आज हम लिविंग स्टोन के बारे में सीख रहे हैं, जिंदा पत्थर के बारे में सीख रहे हैं। वो जिंदा पत्थर एक तमसीली और नबूवती अंदाज में खुदा का कलाम है। जिस जिंदा पत्थर के बारे में खुदा के कलाम में लिखा गया, वो कोई ये दुनियादारी का जैसे पत्थर है वैसे नहीं है, बल्कि एक तमसीली अंदाज में खुदा ने बात की है अपने मुतालिक और अपने लोगों के मुतालिक। आमीन। और उसके अपने कौन है? पाक कलाम में लिखा है जिससे उनकी वाकफियत है, वो उसके अपने हैं। और मुकाशवा किताब में लिखा है, बड़ा जबरदस्त यूहन्ना ने एक बात कही। उसने कहा कि तुम कहते हो कि तुम जिंदा हो, पर तुम क्या हो? मुर्दा हो। तुम मुर्दा पत्थर हो बेसिकली। और पत्थर एक ऐसी चीज होती है कि जो सख्त हालत में और बेहतरीन हालत में होती है, और उसकी एक बुनियाद भी बनाई जा सकती है, जिस पर अगर कोई घर आप तामीर करते हैं तो उसे चाहे जितने मर्जी सलाबी रेले और टकरे लगे, वो नहीं गिरता। हालेलुया। ये एक ईमान की फाउंडेशन है जो कि पत्थरों पर रखी गई है। और रसूल बयान करता है कि तुम नबियों और रसूलों की नींव पर रखे गए। नबियों और रसूलों की नींव क्या थी? पत्थर। कौन सा पत्थर? जिंदा पत्थर। उस जमाने का जिंदा पत्थर कौन था? खुदा का कलाम, जो उस जमाने में दिया जाता था। आमीन। मेरी गल समझ रहे हो ना? उस जमाने में जो खुदा का कलाम, जो सच्चाई से भरा वक्त का रेवलेशन वाला कलाम था, उस टाइम का रेवलेशन था, और कलाम को मानना जो है बड़ा सख्त होता था। दुनियादारी से निकलकर सच्चाई को कबूल करना सख्त था, वो था जिंदा पत्थर। आमीन। और वो इसी बारे में कह रहा है कि नबी और रसूल जो थे, जिन्होंने रसालत की और जिन्होंने प्रोफेसाइज किया, जिन्होंने नबूवतें की हैं अपने अपने जमाने में, वो नबूवतें किस पर कायम थी? जिंदा कलाम के पत्थर पर। यानी कलाम ही वो पत्थर था जो जिंदा था। और आप जानते हैं कलाम के अंदर क्या है? जिंदगी है। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में एक बड़ी प्यारी बात कही। वो क्या थी? अक्लमंद शख्स अपना घर चट्टान पर बनाता है। चट्टान यानी पत्थर पर बनाता है, और अगर कोई सैलाब आ जाए, कोई बारिश आ जाए, किसी तरह का तूफान आ जाए, तो उस घर को कुछ भी नुकसान नहीं होता। लेकिन बेवकूफ शख्स अपना घर हमेशा वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्च के ऊपर बनाता है, वर्ल्ड डिनोमिनेशन सिस्टमैटिक दुनिया के ऊपर बनाता है, वो अकीदों पर बनाता है। बेवकूफ आदमी अपना घर रस्मों पर बनाता है। आमीन। बेवकूफ आदमी अपना घर उन सारी रटी रटाई पहाड़े वाली दुआओं और नमाजों पर बनाता है। आमीन। और समझता है कि मेरा घर जो है वो बच जाएगा। वो समझता है कि मेरा घर क्या हो जाएगा? बचेगा नहीं। पाक कलाम में लिखा है, जब सैलाब आया, रेला आया, तूफान आया, और बहुत सी जो बारिश का जो पानी है उसे लगा और टकने लगी, तो वो घर क्या हो गया? गिर गया। ये क्या थी? ये बारिश, तूफान और इस तरह की चीजें जो सख्तियां उस घर पर आई। उसने समझा हुआ था कि मेरा घर सही बना हुआ है, सही जगह पर है, लेकिन वो रेत पर था, वो नबियों की नींव पर नहीं था। वो फाउंडेशन ऑफ द अपोस्टल्स एंड द प्रोफेसाइज प्रोफेटिक जो मिनिस्ट्री है उस पर नहीं था। आमीन। इसलिए वो गिर गया। आज दुनिया में रेत पर बने हुए घर आपको बेशुमार मिलेंगे। वो सुकून तलब घर होंगे। वो लोग कहेंगे कि इस घर में जो, इसमें सुकून है, इसमें टाइम भी कम लगता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती, और उनकी बातें कुछ ज्यादा मुश्किल पहाड़ा भी नहीं है, इजी होती हैं। आमीन। और वो ज्यादातर क्या सिखाते हैं? गुनाह से बचो। वो क्या सिखाते हैं? ज्यादातर रोजे रखो। वो 3 टाइम 4 टाइम दुआ करने का सिखाते हैं। आमीन। वो सलाम मरियम सिखाते हैं। वो रोजरी पढ़ना सिखाते हैं, सॉरी टू से। वो बहुत सी और चीजें जो दुनिया में एक पहाड़े के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर हैं, वो ही सिखाते हैं। पाक कलाम में लिखा है ये सारी चीजें हम एक वक्त में खुदा उनसे दूर ले जा सकती हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है जो मसीह की सच्चाई को जानने से पहले मेरे पास था, वो सब मेरे लिए कूड़ा है।
जब उसने यीशु मसीह से मुलाकात की, एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद उसके मुंह से ये बातें निकली। उसने कहा जो कलाम यीशु मसीह को पेश नहीं करता, यीशु मसीह का रेवलेशन पेश नहीं करता, यीशु जो कि गहरी सच्चाई है उसको जानने नहीं देता, वो हमारे लिए कूड़ा। आमीन। इसीलिए आज कई हजार साल गुजर गए, कलीसिया जो है वो बह चुकी है, और उन्होंने अपना घर किस पे बनाया हुआ है? रेत के ऊपर, फर्जी अकीदों के ऊपर, फर्जी जो बातें उन पर बनाया हुआ है, इसलिए वो आज तक सच्चाई को जान नहीं सके, रेवलेशन को समझ नहीं सके। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है ऐसी कलीसिया के बारे में? मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, तुम्हें रेवलेशन को जानना चाहिए था। वक्त जो चल रहा है उसके मुताबिक तो मैं तुमसे बड़ी उम्मीदें रखता था, लेकिन ये कलीसिया मुझे लगता है फिर से तुम्हें संडे स्कूल कराने की जरूरत पड़ गई, फिर से तुम्हें ये बताने की जरूरत पड़ गई है कि ऐ हमारे बाप, फिर से तुम्हें ये बताने की जरूरत पड़ गई है कि जनाब यीशु कहाँ पैदा हुआ, कौन से शहर में। ये बातें क्या समझने का दौर है? अब उड़ान भरने का टाइम है, और सख्त गजा, उकाबी गजा का टाइम है, रेवलेशन वाली गजा का टाइम है, और आप अभी भी संडे स्कूल की चीजों में लगाया हुआ है। लोगों ने अभी भी बस फर्जी गीतों में लगाया हुआ है, अपने टाइम के गीत गाने से रोका हुआ है। आमीन। पुराने वक्तों में ऐसा था, और बाइबल में भी ऐसे शायबे नजर आते हैं कि जब कोई फौत हो जाता था तो कुछ लोगों को बुलवाया जाता था, टीम को, और वो बांसुरी बजाते थे, रोने वाली उसको आवाज को निकालते थे। आपको पता होगा जायरस की बेटी जब मर गई थी, और यीशु ने कहा था फिक्र ना कर, वो मरी नहीं बल्कि सोई है। तो वहां पर पढ़िएगा आप, अगर बाइबल पढ़ते हैं आप, क्रिश्चियन का राज्यों में, तो बाइबल भी पढ़ा करो। वहां पर लिखा है जब यीशु वहां पर पहुंचा अपने शागिर्दों के साथ, तो आगे देखा कि रोने वालों की आवाजें और बांसुरी बजाने वालों को देखा। पढ़िएगा, वो बांसुरी जो बजाई जा रही थी, वो जो भी एक साज बजाया जा रहा था, वो लोगों को और दुख में ले जाने के लिए कि और गहरे तौर पर रोएं उस चीज को, मौत पर नोहा। आमीन। और जब यीशु वहां पर गए और यीशु ने ये बात की, तो सारे हैरान हो गए। मैं समझता हूँ सारा म्यूजिक बंद हो गया होगा, सोचते होंगे किस तरह का यार शख्स आ गया, ये किस तरह की बातें कर रहा है, अजीबो गरीब किस्म की। लड़की मर चुकी है और ये कहता है नहीं, मरी नहीं, सोई है। आमीन। मैं यहाँ पर कहूंगा ये है जिंदा पत्थर। अगर यीशु ने कहा नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, ये मरी नहीं, सोई है, तो उसकी दुल्हन में भी ये ईमान है। ये है जिंदा पत्थर। वो कहते हैं ईमान रख, ईमान रखेगा तो वो जो तुझे चाहिए वो पूरा हो जाएगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने अगर कह दिया था, भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं यीशु ने कहा था गो कि वो लड़की मर चुकी थी। साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी थी। साइंस का बदन के ऊपर जोर है, मेडिकल साइंस का या दीगर और चीजों का, और मेडिकल साइंस हमारे बदन को, ये 5 सेंसेस का जो बदन है, इसको प्रूव करती है। ये जिंदा हो तो बताती है जिंदा है, मर गया हो तो बताती है मर गया। तो वो लड़की मर चुकी थी, ये फाइनल था, मर चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि वो मरी नहीं, फिक्र न कर, वो जी उठेगी। आमीन। और ये करने से पहले, इस बात को साबित करने से पहले, यीशु उस रूम में गए, कमरे में गए, और सबको कहा बाहर निकाल दो, हर तरह के अकीदे को बाहर निकाल दो, हर तरह के जो रस्मी मामलात हैं उनको बाहर निकाल दो। और पीछे कौन रह गए? यीशु मसीह के 2 शागिर्द, यीशु खुद, और साथ में वो कौन? 2 लोग दूसरे। आमीन। उसकी माँ और उसका बाप। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और भाई ब्रैनम बयान करते कि वो रूह जो उस वहां पर परवाज कर गई थी, जहां पर पाक रूहें मौजूद होती हैं, हालेलुया, तो उस रूह को उस वहां से आना पड़ा, परवाज कर वापस आना पड़ा। मैं तुझसे कहता हूँ हालेलुया, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, ऐ बेटी मैं तुझसे कहता हूँ, हालेलुया। तो लिखता है वो लड़की उठ खड़ी हुई, और उसने, यीशु ने कहा इसे कुछ खाने को दो। आमीन। इसे कुछ खाने को दो। ये है जिंदा पत्थर। जिंदा पत्थर को क्या करना है किसी ने? ये क्या है बात? यानी वो एक, उसकी अपनी एक वेटेज होती है, अपना एक क्या उसे कहना चाहिए कि वजन होता है, और फिर उसकी अपनी एक अफादियत भी होती है पत्थर की। और अगर उसकी अफादियत, उसका फायदा, उसकी चीज जो उसमें खूबियां हैं वो ना हो, तो वो पत्थर नहीं है, वो कहने को पत्थर है। आमीन। वो ईमान में हार्ड होना चाहिए, और उसमें वही जिंदगी होनी चाहिए जो मसीह में जिंदगी है, और वो मैं और आप हो सकते हैं। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो यीशु मसीह जिंदा पत्थर था। जिंदा पत्थर क्यों था? क्योंकि उसमें खुदा की जिंदगी थी।
जिंदगी का कलाम था, जो वो कहता था उसको प्रूफ भी करता था। और अगर हम कहीं ना कहीं पर यीशु मसीह में हैं और उसका मकदस हैं और उसका मकदस होने का यानी उसका घर होने का, उसकी ब्राइड होने का दावा बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जिंदगी होगी जो मसीह जिंदा पत्थर के अंदर थी। और उसने कहा तुम भी जिंदा पत्थर बनते जाते हो और उस तुम में फिर मसीह रहना शुरू हो जाता है। यीशु जिंदा पत्थर बन गया, क्यों? क्योंकि उसमें बाप आकर रहने लगा। हालेलुया। हम जिंदा पत्थर बन जाते हैं क्योंकि मसीह हम में रहने के लिए आ रहा है। हालेलुया। बातों को समझे। मैं यहाँ पर एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। आपको याद होगा पुराने अहदनामे के अंदर जब दौर चल रहा था फलस्तीनियों की जंग का और मध्य मुकाबल साउल बादशाह बनी इस्राइल का पहला बादशाह था। आमीन। तो सामने फलिस्ती थे और बड़ा खतरनाक वक्त था और वहां पर वो आकर ललकार रहे हैं और उनमें एक जाति जूलियत नाम का शख्स था जो कि बड़ा कदावर था और बड़ा जंगजू था और वो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। आमीन। अब हुआ क्या कि साउल भी घबरा गया। मैं मुख्तसर बयान करने लगूं। और वहां पर दाऊद के बाकी भी भाई थे, बड़े जवान, वजी, खूबसूरत और पूरी मशकें करके सीखे हुए। मैं यहां पर ऐसे कहूंगा उन्होंने सारी सेमिनरियां की हुई थी। आमीन। और उनका उस टाइम का पोप जो था वो साउल था। बातों को पकड़ दे जाए, तस्वीरों को किन्ने ने जड़ी मेरी गाल समझ रहे। साउल को समझ लें कि वो पोप है। आमीन। और पूरे उस मुल्क के ऊपर, पूरे बनी इस्राइल पर एक पोप का असर है और वो पोप जो है वो जंग करना चाहता है किसके खिलाफ? अबलीसी कुफ्तों के खिलाफ। और अबलीसी कुफ्ते कौन है? फलस्तीनी, फलिस्ती। उस टाइम पे फलिस्ती उनको कहा जाता था, गैर कौम के लोग। वो ललकार रहे हैं आकर, जैसे शैतान आज कौमों के जरिया से या बुरी आदत या बुरे मॉडरेट एटमॉस्फेयर के जरिए से आपके पास आता है, ललकारता और कहता है अगर तू खुदा की बेटी है, अगर तू मसीह की है, अगर मसीह का है तो मेरे साथ जंग कर। आप कहते हैं मैं हारा हुआ हूं और आप लड़ने से पहले गिर जाते हैं। समझ आ रही होगी मेरी बात? समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, बहुत सी जगहों पे आता है वो आपके दिमाग में, ख्यालात में, और आपको गिरा देते हैं और आप गिर भी जाते हैं। और अगले दिन सुबह आके चर्च में कहते हैं मैं खुदा की बेटी और मसीह की ब्राइड का हिस्सा हूं। आप झूठ बोलती हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप भाई हैं अगर हैं तो वो भी झूठे हैं। उसने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे हुक्मों को नहीं मानता तो वो झूठा है। झूठा है वो। ये वो झूठ नहीं जो आप रोजमर्रा जिंदगी में लोगों से बोलते हैं, वो तो माफ हो जाएगा। समझ रहे ना गाल में? तो क्या है? उसने कहा कि फलिस्ती चढ़ आए हैं और हर रोज आकर बॉर्डर पर ललकारते हैं कि आकर हमसे जंग करो। किधर है बनी इस्राइल का खुदा? रोके उनको, बचाए, हमें रोके और उनको बचाए। आमीन। कोई तुम में ऐसा नहीं जो मुझसे जंग करे। तो मैं कहता हूं अगर आज वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्च का पोप जो है वो आकर कहे कि भाइयों जिन्निया में मिशना वो आके साथ गल करो, हम सबसे पहली कलीसियां हैं, तो आप में से 90% लोग उसी वक्त फ्यूज हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वह क्यों गिर जाएंगे? क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ली जंग की। आपको जंग की प्रैक्टिस ही नहीं। कौन सी प्रैक्टिस भाई? ये सेमिनरी वाली? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना। वो तो हर किसी ने की है। वो आपके घर में आजकल मिशनें करवा रही, घर बैठे सेमिनरियां करो, कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? नाल रोगे तो गाल समझो बरकत मिलेगी तानू। और बल्कि इनको प्रैक्टिस भी भेजते, हमारे इलाके में बड़ी बच्चियों को भेजा उन्होंने, यंगस्टर बच्चियों को भेजा है मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे कि जहां पर जाकर वो कलाम की मुनादी करें। हालांकि ये कलाम के बाहर है और ये गुनाह करवा रहे हैं उनसे। मैं सीधी सीधी खुदा के मसले पर बात कर रहा हूं। औरत का काम नहीं है मिनिस्ट्री करना। दैट्स इट। मिनिस्ट्री का मतलब भी किसी को पता है की मतलब मिनिस्टर किनू कहते हैं? मिनिस्टर किसे कहते हैं? और भी सही हम दसो मतलब असली मतलब दसो मिनिस्टर क्या लिखा है? जो कोई निगहबान का होता, चाहे इंग्लिश की लिखे होते हैं। अब हमारे मुल्क की काबीना जो बैठी हुई है उसमें कितने मिनिस्टर हैं? दसो। बड़े मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है चला रहा है ना? एजुकेशन मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, की ख्याल है? कौन दसो मिनिस्टर का की मतलब है? निगहबान। निगहबान जिसको जो मिनिस्ट्री दी जाती है वो उस काम का निगहबान होता है, वॉच आउट करता है, उसको देखता है। मिनिस्टर का क्या मतलब है? निगहबान। और वो उसको वजारत भी कहते हैं, वजीर भी कहते हैं। आमीन। उसका हेड होता है वो। आपको पता होगा जब यूसुफ को हक दिया गया था तो उसको ये कहा गया था, हालांकि उसके ऊपर एक और भी बादशाह था फिरौन, लेकिन उसको ये हक दिया गया था कि जो कुछ ये कहेगा वही होगा। और वो चलता था और हर चीज की निगहबानी भी करता, देखता था। उसने फसल को पैदा किया था कि नहीं? हम वापस चलते हैं, मैं मिनिस्टर समझा रहा हूँ।
मिनिस्टर निगहबान। घर का मिनिस्टर कौन होता है? घर का मिनिस्टर, हमारे घर का मिनिस्टर, आपके घर का मिनिस्टर मर्द। मर्द यीशु मसीह हमारा क्या है? मर्द। ये खुदा का क्या है? घर। हालेलुया। खुदा ने कभी भी हैकल में कलीसिया की निगहबानी के लिए औरतों को मिनिस्टर नहीं बनाया। आज औरतें मिनिस्ट्री करती फिर रही और अजीब तरह की बातें बीच में लाकर कहती हैं जी वो हमें भी करने की जरूरत है। कर लो भाई, करके देख लो, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, नुकसान जरूर होगा, ये कन्फर्म है, लिख के ले लो। तो क्या है? सेमिनरी वाली वही प्रैक्टिस जो साउल कह रहा था, वहां पर आ रहे हैं फिलिस्ती और आके ललकार रहे हैं और कहता ताड़े जो कोई नहीं आया जिन्हों तो जाएगा कौन? गिरेगा क्यों? लोग क्यों गिर रहे हैं? क्यों जंग नहीं लड़ पाते? क्योंकि कहीं पर प्रैक्टिस नहीं है। और प्रैक्टिस कौन सी? रेवलेशन प्रैक्टिस, भेदों की प्रैक्टिस, जिसको भेद ही पता नहीं है। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। क्यों जी? तो ऐसे धोखा होता है। जिनको रेवलेशन पता नहीं उनको बातों से और कलाम की बहुत सी चीजों से लोग धोखा देते हैं। हालेलुया। वहां पर फिलिस्ती आ गए, जाति जुले ललकार रहे और सारे ललकार रहे उनको, कह रहे हैं कि तुम में से कौन है जो आकर हमसे लड़े। और आज बनी इस्राएल का खुदा किधर है जो उनको बचाएगा हमारे हाथ से? तो वहां पर क्या हुआ? बड़े बड़े सेमिनरी करने वाले वापस भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वाली जो बात कर रहे हैं इसका जवाब कहां से लेकर आए। आमीन। और वो कांपना शुरू हो गए और उन्होंने वापसी का रास्ता लिया। और यहां तक कि बादशाह भी परेशान हो गया, साउल बादशाह, कि अब क्या होगा? अब तो ये ऊपर चढ़ा है हम पर, अब तो ये हम पर गलबा हासिल कर लेंगे। तो वहां पर एक नौजवान था, नौजवान नहीं कहूंगा, एक बच्चा था। शीर खानों के मुंह से बहे कलाम। उसने कहा, उसने बड़ी अक्ल और दानिश वालों को तख्तों से हटाकर नीचे गिरा दिया और हम बच्चों को ऊपर बैठा दिया। खुदावंद ने कलाम से लिखा है ना, खुदावंद ने बच्चों से वो काम लिया। तो इसमें बाइबल में बड़े शायबे आपको नजर आएंगे। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से वाकयात ऐसे नजर आएंगे जहां पर खुदा बच्चों से काम ले रहे हैं। और दाऊद एक बच्चा ही था। और दाऊद जब आया तो दाऊद ने देखा कि वो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर गया, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं जनाब, हैं? कलाम सुना रहे हैं, रोटी लेकर जाओ, उनको फीडबैक दो, है ना। जब खुदा का एक बच्चा मिनिस्ट्री करके इब्लीसी फौजों से लड़ता है तो पीछे उनको फीडबैक की जरूरत होती है। फीडबैक की जरूरत होती है। समझे बातों, समझो ना। तुझी को पुत्र लड़ के आ तो कहेगी अम्मा, कहेगा अम्मा जी, अब्बा जी कि ओदा टीम नहीं तो खवाओ ना मैनू, तो फिर ही लड़ांगा ना। हैं? फौजा खाणगियां ना तो लड़नगियां किथों? समझ आ रही गल? तो कहते नहीं 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 नहीं, खाना हमारा काम है, आपका काम लड़ना है। आमीन। रोटी लेकर गया तो आगे वो उनके लिए, उनका पता करने गया, उनके लिए खाने पीने की चीज लेकर गया तो आगे देखा तो वो परेशान है और वो आगे ललकार रहा है। और उसको गैरत आई और उसने क्या कहा? उसने कहा ये फलिस्ती जाति जुले कौन होता है जो खुदावंद हमारे खुदा जिंदा खुदा की फसीह करे, उसकी बेइज्जती करे? ये कौन होता है? हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। ये वो गैरत है जो खुदावंद अपने जिंदा पत्थरों में रखता है। हालेलुया। क्या था? वो बच्चा ही तो था, लेकिन गैरत बच्चा या बड़ा नहीं देखती, गैरत गैरत होती है। गयूरी, खुदा की गयूरी। उसने कहा किसी मूरत या सूरत ना बनाना किसी चीज की, ये पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमान के तले, किसी चीज की सूरत या मूरत ना बनाना और ना उसके आगे सजदा करना, क्योंकि तेरा खुदावंद, तेरा खुदा गयूर खुदा, गैरतमंद खुदा है। इसका मतलब तू किसी और के आगे जाकर झुकेगी कलीसिया, और मैं तेरा शोहर हूं, मुझे गैरत आएगी। समझ आ रही गल दी? आज ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? समझ आ रही गल? सारे ठीक नहीं है, लेकिन कोई तो है जो ठीक है, कोई एक तो है जो अभी बच्चा है दुनिया की नजर में, लेकिन गैरत उसमें पूरी है। और उसके भाइयों ने उसे रोका, क्या कहता है? ये मार देंगे हमें। आमीन। उन पादरियों ने रोका, भाई बाबर, भाई साहब तुसी केड़ा कलाम सुना रहे हो, ये मार देगा तानू, कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा। आमीन। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको अब जवाब तो देना, जंग तो करनी है। और उन्होंने कहा अच्छा जंग करनी है,
तो पास्टर दाऊद साहब फिर आए वापस, दाऊद ही था ना, छोटा दाऊद। पास्टर दाऊद साहब आए फिर वापस, उन्होंने कहा अब क्या है, मुझे लड़ने दे। उसने कहा ऐसे ना लड़ो, पहले पूरा लिबास पहनो जंग का। वो क्या है, वो 6 साल सेमिनरी है, वो करो। समझ आ रही ना, वो सेमिनरी कर लो। उसने कहा अच्छा वो क्या होती है, तो उसने कहा चलो। उसने कहा क्या होती है भाई, मैंने वो नहीं करनी, मैंने कभी नहीं सुना सेमिनरी का, मैंने रेवलेशन का सुना है, मैं भेदों के साथ चलता हूँ, मैं पहाड़ों के साथ नहीं चलता। उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी है, बादशाह का ऑर्डर है, सेमिनरी के बगैर किसी को पादरी ना माना जाए। इसीलिए कलीसिया के किसी घर में जो भाई जी कितों सेमिनरी की दीजिए, पूछने ना, पूछने के नहीं। तो जिन्हें कि जरा कहना नहीं मैं सेमिनरी नहीं की, उनका पोलो या पादरी है, अब कटो इन्हों बाहर इतों, क्यों जी। मैं गल नहीं करना चाहता। तो सेमिनरी वाले को ले आए तो वो शायद कुछ और निकाल के ले जाए घर से। जरा सेमिनरी तो बगैर उन्होंने कहते कड्डो इन्हों घरों बाहर, तो जरा सेमिनरी वाले आए वो कुछ होर कट के ले जाए। उत्थे सब कबूल है, चलता है। ऐ साडी अकल दा ज़ाविया पैरामीटर। तो क्या ले गए, वो चला गया था, क्या दिखाओ यार कौन सी सेमिनरी है। वहां पर बैठा था पोप कौन था, साउल। साउल ने बोला, साउल के सामने आए कि एक बंदा पादरी बनना चाहता है। क्यों भाई, वो जो जंग है ना अपनी इसके खिलाफ, वो ये लड़ना चाहता है। कहता है बच्चा लड़ेगा, कहता है हाँ यही लड़ेगा, कहता है मैंने लड़ना। कहता है चलो लेके आगे, ये सेमिनरी का सर पे हेलमेट पहन लो, ये पाँव में सेमिनरी के जूते पहन लो, ये सेमिनरी का वो सिपर पकड़ लो, तलवार पकड़ लो सेमिनरी की, अब तुम्हें कोई नहीं कराएगा। वो कहता है यार ये जो आप मुझे दे रहे हैं ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो रही, मैं तो चल भी नहीं सकता इसके साथ। बात समझ आ रही है। उसने कोशिश की कि चल पोप कह रहे करके देख लेने, पर हुआ नहीं कुछ उसका, और उसने उतार कर फेंक दिया। उसने कहा नहीं पोप साहब इससे काम नहीं चलेगा, जो मेरे पास है मेरे अंदर है उससे काम चलेगा। और उसके अंदर क्या था, हालेलुया, तारीफ हो खुदा के नाम। आज हमारा टॉपिक है जिंदा पत्थर, लिविंग स्टोन्स। मैं आपको लेकर आऊंगा वहीं पर, उसी मरकजी ख्याल पर। और उसने वो सारी सेमिनरी के जितने वो चीजें थी उसने छोड़ दी वहीं पे, और उसने कहा मैं अपने तरीके से जंग करूंगा। और वहां पर गया और उसने आकर फिर ललकारा जाति जूलियत ने, और वो सामने खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो जाति जूलियत ने कहा क्या इनके पास कोई मर्द नहीं बचा जो ये बच्चा छोटा सा भेज रहे हो मेरे साथ लड़ने के लिए। आमीन। दाऊद ने कहा आज खुदावन तुझे मेरे हाथ में कर देगा, अब से ललकारना बंद हो जाएगा तेरा। आमीन। क्या हुआ, और कलाम इस बारे में बताता है उस वाकया को कि जब जाति जूलियत ने वार किया तो दाऊद ने अपनी फलाखन निकाली। भाई ब्रैनम कहते हैं फलाखन एक पादरी की सेमिनरी नहीं, बल्कि एक पादरी के पास 5% खिदमात का रेवलेशन है। 5 किस्म की सेवकाइयाँ खिदमात जो हैं वो उस पास्टर के पास उसका इंफॉर्मेशन उसे होनी चाहिए। आमीन। अब ये फलाखन जो थी वो वेपन था, जैसे गुलेल के आगे चमड़ा होता है और चमड़े के साथ उसे खींच के मारते हैं पत्थर रख के, लेकिन ये वाली गुलेल नहीं थी, ये वाली फलाखन थी। उसमें पत्थर डालते थे और पीछे पूरी की पूरी एक हैंडल था और उससे घुमाते थे उसे, और घुमाकर उसे जब थ्रो करते थे वो पत्थर जाकर लगता था, जो मतलूबा जगह होती थी टारगेट होता था। उसने अपनी फलाखन निकाली और लिखा जमीन से चिकने चिकने 5 पत्थर उठा लिए। हमारा मरकजी जो इसमें आकर बात हम सीखेंगे, 5 पत्थर उठाए। ये वो 5 पत्थर थे जो इफ्सियों 4 बाब में बयान किए गए। आपकी खिदमत आपके हाथ का पत्थर। आप अगर वर्शिपर हैं तो वो आपके हाथ का पत्थर है, आप अगर म्यूजिशियन हैं तो आपके हाथ का पत्थर है, अगर आप मीडिया प्लेयर हैं तो आपके हाथ का वो पत्थर है। आमीन। अगर आप साउंड ऑपरेटर हैं तो आपके हाथ का पत्थर है, अगर आप पास्टर हैं, मुबश्शिर हैं, रसूल, नबी, शरवाहा हैं तो ये आपके हाथ का पत्थर है। लेकिन वहां पर इफ्सियों के खत में 5% खिदमत बताई गई। बाइबल मुकद्दस में और भी खिदमत हैं जो कभी मौका मिला मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5% खिदमत ही है। हाँ, ये 5% खिदमत चर्च की लीडरशिप की खिदमत है जो कि डाइस की खिदमत है। आमीन। लेकिन उसके अलावा डाइस की खिदमत नहीं, जो चर्च में बाकी दीगर खिदमत हैं वो है। हालेलुया। तो उसने 5 चिकने चिकने पत्थर उठाए, और जब पत्थर उठाए तो उसने पहला पत्थर मारा घुमाकर और सीधा जाकर पॉइंट पर लगा। यहाँ पर, यहीं से तो सारा गंद निकलता है, यहीं पर सारा गंद फंसा होता है, यहीं पर मुखालफत की रूह फंसी होती है, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर होती।
یہاں پر سائنس ہوتی ہے, یہاں پر ہوا کو گرایا جاتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ابلیس وار کرتا ہے, اور ابلیس کو بھی آپ نے یہیں پہ وار کرنا ہے. آپ چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, عمر کتنی ہے, نہیں کتنی ہے, آپ کے پاس ریولیشن ٹھیک ہے تو آپ کے پاس خدا کی غیرت ہے. آپ کے پاس وہ پتھر ہیں جو آپ فراخن میں رکھ کر پوائنٹ پر نشانہ کریں گے تو جاتی جولیت سے بھی بڑا کوئی آئے گا, وہ گرے گا. جاتی جولیت دنیا کا, نبی بیان کرتے ہیں جاتی جولیت کیا ہے؟ جاتی جولیت دنیا کا ورلڈ یونائٹڈ ورلڈ ڈینومینیشن سسٹم ہے جو کہ مختلف تعلیمات لے کر آتا ہے. آمین. جو مختلف طرح کی باتیں آ کر کہتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی خدا کا بیٹا ہے سامنے آ کر ہم سے بات کرے. آمین. ہاللویہ. لیکن یہ ورلڈ ڈینومینیشن سسٹم بیسڈ کرتا ہے سیمنری پر. ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے سیمنری. اور سیمنری کی کچھ لائنوں کو بول کر کے وہ آپ کے خلاف آتے ہیں اور آپ ریولیشن کو بول کر کے ان کے خلاف کیا کرتے ہو؟ وار کرتے ہو, ان پر حملہ کرتے ہو اور پھر آپ جیت جاتے ہو. ہاللویہ. اسی لیے میسج کے اندر ریولیشن کو بیان کیا جاتا ہے, میسج کے اندر کسی سیمنری عقیدے کو بیان نہیں کیا جاتا. آمین. میسج کیا؟ اینڈ ٹائم میسج کے اندر, آخری زمانے کے کلام کے اندر دودھ نہیں پلایا جاتا بلکہ عقابوں کی غذا کھلائی جاتی ہے. ہاللویہ. تو وہاں پر داؤد نے کیا کیا ہے؟ پاسٹر داؤد, میں یہ کہوں گا پاسٹر داؤد جو کہ ریولیشن بیسڈ پاسٹر ہے, نہ کہ سیمنری بیسڈ پاسٹر ہے. اس کی بیس, اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیمنری نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سیمنری میں ریولیشن پڑھائے نہیں جاتے, اور جہاں پر ریولیشن نہیں پڑھائے جاتے تو اس کا مطلب کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. اور جو اور کچھ پڑھایا جاتا ہے, نبی بیان کرتا ہے الہام وہ ہے جو کلام سے مطابقت رکھے. الہام یعنی رحمہ, یعنی خدا کا فریش مننا, وہ چیز ہے جو خدا کے کلام سے مطابقت گٹھ جوڑ رکھے. اس کا گٹھ جوڑ اگر کلام کے ساتھ نہیں ہے تو وہ شیطانی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو ڈبا سکتا ہے. اور اسی لیے اس نے کہا کچھ عجب نہیں, کیونکہ ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے, وہ بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار کر آ جاتا ہے. وہ بھی سیمنری کر کے پادری بن کے آ سکتا ہے. وہ روپ دھارن کلیسیا کو ڈیولپ کر سکتا ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے. آمین. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کے لیے تھا زندہ پتھر کا کلام, اگر یہ آپ سے مطابقت نہیں رکھتا, آمین, کیونکہ میں نے آج مردہ پتھروں پہ نہیں پڑھایا, میں نے آج زندہ پتھروں پہ پڑھایا. ہاللویہ. زندہ پتھر کی ایک اور مثال دیتا ہوں. زندہ پتھر وہ شخص یا وہ بہن یا وہ بھائی ہوتا ہے, مسیح کی دلہن کا حصہ ہوتا ہے, کہ جس سے اگر کسی مردہ پتھر کا ٹکراؤ ہو جائے. ٹکراؤ سمجھتے ہیں؟ اس کی صحبت میں, زندہ پتھر کی صحبت میں کوئی مردہ پتھر آ جائے, اور وہ پتھر جو کہ مردہ زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ جانتے ہیں الیشا کا واقعہ. الیشا وہ زندہ پتھر تھا جس کے پاس ڈبل پورشن تھا. ڈبل پورشن دوہری منسٹری تھی, دوہری خدمت, دوہری برکت تھی. کس کی؟ ایلیا کی روح کی. The spirit of Elijah کا ڈبل پورشن تھا اس کے پاس. یہ ڈبل پورشن والا کون ہے؟ برائٹ چرچ. لوگوں کی نظر میں مر چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مردہ پتھر کا, مردہ پتھر کا مطلب ہے ایک اور مردہ. میں یہ کہتا ہوں کبھی کسی نے غور بھی نہیں کیا ہوگا اس بات پر, وہ کیوں زندہ ہو گیا, کیوں ہو گیا وہ مردہ پتھر؟ کیونکہ وہ برگزیدہ تھا خدا کا, پہلے سے مقرر شدہ تھا. آمین. اور جو مقرر شدہ ہے اگر گناہ میں مردگی کی زندگی گزار رہا ہے, مردہ زندگی گزار رہا ہے, تو ایک ٹائم پر زندہ پتھر کے ساتھ جب اس کا انکاؤنٹر ہوگا, ملاقات ہوگی, تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا. آمین. ہاللویہ. جب وہ مردہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا, زندہ پتھر کے ساتھ ٹکرایا, باتوں کو پکڑیں, تو وہ مردہ نہیں رہا. اس لیے اگر آپ زندہ ہیں تو آپ دوسروں کو زندگی دیں گے. آمین. کیا الیشا بھی زندہ ہو گیا وہاں پر؟ نہیں, الیشا تو اپنے اسی مقام پر چلا گیا. آمین. لیکن ساتھ جو ٹکرایا وہ زندہ ہو گیا. ہاللویہ. اس کا مطلب کیا؟ ایلیا چلا گیا اور اپنی برکت کا ڈبل پورشن الیشا پر چھوڑ گیا. الیشا چلا گیا اور اپنی برکت کو, اپنی زندگی کو ایک دوسرے مردہ پتھر کو زندہ کر کے چھوڑ کر گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے اندر اگر زندگی ہے, آپ وہ زندہ پتھر ہیں جس کے اندر زندگی ہے, تو آپ چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں کسی کے لیے؟ کیا آپ کے پاس بیٹھنے سے کسی کی زندگی بدلی؟ پر سب یہ تو پادریوں کا کام ہے. تو میں یہ کہوں گا نوجوانوں کا کیا کام ہے, ذرا مجھے سمجھاؤ. جی, نوجوانوں کا کام ہے لائف انجوائے کرنا,
पढ़ना, खाना पीना, है ना, और बहुत सी चीजें हैं जो करना, और बस ठीक है, ऐसे ही होता है सर। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसे होता है तो दाऊद छोटी उम्र में कभी भी खुदा का चुनिंदा बरगजीदा ना होता। आमीन। उसे भी लगता कि नहीं यार मैं कुछ और कर दूं। क्या ख्याल है? तो अगर आप जिंदा हैं तो फिर जिंदगी बचाएंगे, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आज ही आप वो पत्थर जो आज कलाम के जरिए से जिंदगी का कलाम आपको दिया गया है उसको कंसीव करते हैं, तो आप जिंदगी में खुदा का जिंदा पत्थर बन सकते हैं, और फिर मसीह की दुल्हन का हिस्सा और उसके ब्राइड चर्च की बिल्डिंग जो कि जिसको हम खुदा का मकदस कहते हैं वो बन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिंदा जो होते हैं वो जिंदगी देते हैं, और जो मुर्दा होते हैं वो वहां से जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। और जब उसने जाति जूलियत को मारा और वो पॉइंट पर लगा, तो उसने क्या वहां पर लिखा है, उसकी जाकर उसी की तलवार से उसकी गर्दन जो है वो काट दी। आमीन। और उसने एक बड़ी फतह हासिल की। किसकी वजह से? क्या उस जंगी हथियारों की वजह से? नहीं। क्या उस सारे लिबास की वजह से जो पोप उसे दे रहा था, जो कि साउल बादशाह उसे दे रहा था? नहीं। किस वजह से? गयूरी की वजह से। गयूरी क्या है? ईमान के बायस गयूरी आती है। गयूरी ईमान के बायस आती है। भाई ब्रानम बयान करते हैं कि ये जो ईमान है ये भी रेवलेशन है। ईमान रेवलेशन के बगैर नहीं आता। आपके पास रेवलेशन होगा फिर ईमान आएगा। आमीन। और जब आपके पास रेवलेशन होगा, ईमान आएगा, तो उसके बाद आप खुदा की गयूरी के साथ जो भी कलाम बोलेंगे, जो फायर करेंगे इब्लीस के खिलाफ, वो असर छोड़ेगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को जानना है। तुम भी पाक कलाम में रसूलों ने बयान किया कि हम नबियों रसूलों की नींव पर रखे गए हैं और जिंदा पत्थर होते जा रहे हैं, और हम तामीर होते जा रहे हैं, और हम बाहम गठ जोड़ के साथ खुदा का मकदस बनते जा रहे हैं, और मसीह के खानदान के होते जा रहे हैं। क्या ये सब नहीं हमने पढ़ा? क्या हम होते जा रहे हैं? आप अपने से सवाल करें। मुझे तो सब पता है, मुझे पता है कि कौन होता जा रहा है, कौन नहीं होता जा रहा है। लेकिन मैं जितना मर्जी भी सोचूं, आपने कभी सोचा अपने मुतालिक? अगर आपने नहीं सोचा तो आज से सोचना शुरू कर दें। हालेलुया। वरना अगले 50 साल भी गुजर जाएंगे और हम रेवलेशन को सुनते तो जाएंगे, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरे लफ्जों में रिसीव तो करेंगे, कंसीव नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, एक काम जरूर होगा, इस जमीन पर एक आग और गंधक की झील पैदा होने वाली है। झील मतलब एक ऐसा दरिया चलने वाला है जिसमें आग और गंधक होगी, और लिखा सब बदकिरदार और बेईमानों को उसमें फेंका जाएगा, जिन्होंने बारहा कलाम को सुना लेकिन उस पर अमल कभी नहीं किया, उसके मुताबिक जिंदगी कभी नहीं गुजारी। उन्हें बुलावा हुआ कलाम के जरिए से कि आज भी वो लौट आए खुदा उनकी तरफ और सच्चाई का साथ दें। सच्चाई कौन सी? रेवलेशन बेस्ड सच्चाई, रेवलेशन की बेस करने वाली सच्चाई, भेदों की सच्चाई, ना के सेमिनरियों की, ना के अकीदों की, ना के रस्मों की। आमीन। ना के क्रीड्स की, ना डगमास की। ये सारी जो सच्चाइयां दुनिया में चल रही हैं, जिनको लोग सच्चाई कहते हैं, वो सच्चाई है नहीं। आमीन। मुझे एक बात बताइए, मैंने पहले भी एक बार इस बात को बयान किया था, लोग अपने अपने तरीके से हर चीज को मान रहे हैं और दावे भी भरते हैं कि हम खुदावंद के हैं। आज भी लोग दुआ करते हैं और मुकद्दसीन की रूहों को बुलवाते हैं। पता है, हमारे क्रिश्चियंस में एक फिरका ऐसा है जिसको रोमन कैथोलिक कलीसिया का फिरका कहा जाता है। वो सेंट्स की रूहों को बुलवाते हैं दुआ में। सेंट सिसिलिया की रूह आए, सेंट जोसेफ की रूह आए, सेंट इसकी रूह आए, सेंट पीटर की रूह आए और हमारी शफात करे। वो कहते हैं ये रूहें हैं, जिंदा हैं, ये आ सकती हैं। आमीन। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक यीशु मसीह ने जान नहीं दी थी और रूहों का मकाम नहीं बदला था, उससे पहले ये आती थी। और इनको बुलाता कौन था? कोई भी नहीं बुलाता था, सिर्फ यीशु बुलाता था। यीशु ने जायरस की बेटी की रूह को बुलवाया। आमीन। कहां से बुलवाया? पताल से बुलवाया। हालेलुया। यीशु ने बुलवाया। आमीन। बल्कि इसमें थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और समझते हैं। खुदावंद यीशु या खुदा अपने कहे हुए को कभी नहीं काटता। खुदा जो है वो अपने कहे हुए पर कभी भी जो है वो उसको काटता नहीं, उसको रद्द नहीं करता, उसको पूरे टाइम पर जाकर पूरा करता है। आमीन। उसमें जो कहा कि इंसान जो है वो गुनाह करेगा और उसके बाद जरूर मरेगा, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। फिर उसने ये भी कहा कि जो मर जाएगा वो पाताल में जाएगा और कैद किसकी, वहां पर हाकिम कौन होगा? इब्लीस होगा, अच्छी रूहों का भी बुरी रूहों का भी। तो यायर की बेटी की रूह वहां पर नहीं थी, तो यायर की बेटी की रूह फिर कहां पर थी? जहां से उसे बुलवा लिया गया। क्योंकि यीशु मसीह
نے اپنی جان نہیں دی تھی, اس کی قیمت نہیں دی تھی. جب تک قیمت نہ دی جاتی وہاں سے کوئی روح اوپر آ نہیں سکتی. آمین. ایک ہی صورت میں آ سکتی تھی کہ اگر وہاں کا جو ہیڈ ہے ابلیس ہے پاتال کا, جس نے ان سب کو قید کیا ہوا تھا, وہ اجازت دے کہ یہ روح اوپر جائے تو پھر وہ جا سکتی تھی, ادروائز نہیں. میری بات کو سمجھ رہے. اور جب سیمول کی روح کو بلوایا گیا تھا, ساؤل کے زمانے میں ساؤل نے بلوایا جادوگرنی کے ذریعے سے, پچھلے دنوں میں ہم سیکھا ہے ہم نے, تو وہ جادوگرنی تھی, ابلیسی ایک وچ کرافٹ عورت تھی. اس نے ابلیس سے یعنی ڈیمنز جو تھے نیچے جو سارا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھے پاتال کے اندر, ان سے رابطہ کیا اور پھر ساؤل کی روح, پالوس کی روح, سیمول کی روح جو تھی وہ اوپر آئی. آمین. لیکن پھر اس کے بعد کئی ہزار سال بعد یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی. جب جان دے دی تو اس کے بعد جو پاک روحیں تھیں ان کو وہاں سے نکالا گیا, نکالا گیا تھا, ان کی جگہ کو بدلا اور کہاں پر چلا گیا؟ چھٹے مقام کے اوپر. آمین. اب چھٹے مقام سے کوئی بھی کہے کہ وہاں سے روح آئے, وہاں سے نہیں آئے گی. کوئی بھی کہے کہ سینٹ جوزف کی روح آئے, سینٹ سسیلیا کی روح آئے, سینٹ اس کی روح آئے, سینٹ اس کی روح آئے, وہاں سے نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں کے لیے آپ مقام جو ہے وہ بدل چکا ہے اور وہاں کے لیے ایک وقت مقرر ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں سارے ریپچر کا, دنیا کے ریپچر کا. آمین. دنیا کے خاتمے کا. ہاللویا. تو میں کہوں گا کہ یائر کی بیٹی کی جو روح تھی اس ٹائم پر کہاں تھی؟ کیونکہ یسوع نے تو ابھی جان نہیں دی تھی, اور یائر کی بیٹی جو تھی اس کی روح پاتال میں نہیں گئی. اگر پاتال میں جاتی تو ابلیس آنے نہیں دیتا. وہ کہتا یسوع تو کیا کر رہا ہے, سوری تو نے ابھی جان نہیں دی, قیمت دی نہیں, اپنی بات کو تو اپنی حکم اپنی جو اصول ہے اس کو توڑ رہا ہے. جان تو دے, قیمت دے گا تو میں ان کو آزاد کروں گا نا. تو یسوع نے تو جان نہیں دی. پھر وہ کہاں سے آئی؟ وہ کہاں تھی جو جہاں سے بلوائی گئی؟ تو میں کہوں گا جہاں پر ہنوک کی روح تھی, جہاں پر ایلیا کی روح تھی, جہاں پر موسیٰ کی روح تھی, ان تینوں کی روح کہاں پر تھی؟ یہ اسی چھٹے مقام پر پہلے ہی ان کو ٹھہرایا گیا تھا, جہاں پر دوسری روحوں کو بھی لے جایا گیا بعد میں. تو وہاں پر یائر کی بیٹی کی روح بھی وہیں پر تھی, کیونکہ یسوع کو پتا تھا وہیں سے آئے گی. آمین. کیونکہ اگر یہ نیچے گئی تو میں اپنا قانون توڑنے والا بن جاؤں گا, کیونکہ میں نے ابھی جان نہیں دی, قیمت نہیں دی. قیمت کے بغیر وہ کیسے چھوڑے؟ سمجھ آ رہی گال نہیں؟ تو اس کا مطلب یائر کی بیٹی کی روح کو کہاں بلوایا گیا؟ کہاں سے؟ چھٹے مقام سے, جو پہلے ہی بنا ہوا تھا. لیکن ساری روحیں وہاں پر نہیں تھی. کون کون سی روح تھی؟ ایلیا اور ہنوک کی روح اور موسیٰ کی بھی روح. میں دسنا تھا کس طرح. موسیٰ کی روح بھی نیچے نہیں تھی, موسیٰ کی روح بھی چھٹے مقام پر تھی, کیونکہ چھٹے مقام پر جب کوئی ہوتا تھا یسوع کی جان دینے سے پہلے بھی وہ آ سکتا تھا. یائر کی روح, یائر کی بیٹی کی روح وہاں سے بلوائے گی. میں بار بار کیوں دسنا پہ, کیونکہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے جنہوں سمجھنا تھا بڑا ضروری ہے. آمین. اب ایوب کے جو بچے مر گئے تھے نا, بیٹیاں بیٹے, وہ کہاں پر گئے تھے؟ نیچے گئے تھے؟ نہیں, کیونکہ لکھا ہے اسے دوبارہ پھر واپس کیا گیا سارا کچھ, اسے واپس کیا گیا, دگنا واپس کیا گیا, بلکہ ایسے ہی کہا گیا تھا. اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اسے واپس کیے گئے. نبی بیان کرتا ہے کیے گئے. تو کہاں سے آئے تھے وہ؟ وہی چھٹے مقام پہ پہنچائے گئے تھے, کیونکہ خدا جن کے خاص ریویلیشن کہہ دیا, جن کے ساتھ خاص معجزات کرتا ہے, کرنے ہوتے ہیں, ان کی روحوں کو ایک الگ مقام پہ بھیجتا ہے. وہ جو بیوہ کا بیٹا مر گیا تھا اس کی روح کہاں پر تھی؟ دسو میں, یسوع نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا, جان تو ابھی دی نہیں, وہاں سے روح کیسے اوپر آ سکتی ہے؟ وہ بھی چھٹے مقام پر. تو کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی ٹھہرائے گئے تھے چھٹے مقام کے لیے, انہوں نے پاتال کو دیکھا ہی نہیں. سمجھے باتوں کو, سمجھے باتوں کو. ہاللویا. لیکن اس میں ایک اور پورشن بتا دوں آپ کو. جب بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا ہوگا تو کیا وہ ساری زندگی زندہ ہی رہا ہوگا؟ مرا تو ہوگا. تو مرنے کے بعد کہاں گیا ہوگا؟ پاتال میں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پاتال میں گیا ہوگا. اور اگر وہ یسوع کے جان دینے کے بعد, روحوں کے آسمان پر لے جائے جانے کے بعد مرا ہوگا, تو پھر وہ چھٹے مقام پہ گیا ہوگا, کیونکہ جگہ چینج ہو گئی نا. آمین. سمجھے باتوں کو؟ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے. تو چھٹے مقام سے روحیں بلوائی جاتی تھی. ہاللویا. اس لیے خداوند جو ہے
وہ روحوں پر کنٹرول رکھتا ہے لیکن اپنے اصول لازمی بیان کرتا ہے، اور خدا کے اصول جو ہیں وہ ان کو وہ توڑتا نہیں، وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے متعلق کہے کہ سارے کلام کو پورا کیا، اور یسوع زندہ پتھر تھا، اس لیے اس میں زندگی تھی، اور اس کے جتنے بھی لیونگ سٹونز ہیں، جتنے بھی اس عمارت میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، وہ سارے زندہ پتھر ہیں۔ وہ میرے عزیزو آپ ہو سکتے ہیں، بہنوں بھائیوں وہ آپ سب ہو سکتے ہیں، پیارے بچوں وہ آپ ہو سکتے ہیں۔ آج کا کلام آپ کے لیے تھا، کلام کیا تھا؟ زندہ پتھر۔ کون ہے؟ آج آپ نے سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے، ہم سب نے سوچنا ہے۔ زندگی دینے والا زندہ پتھر، الیشا کی طرح زندگی دینے والا۔ یسوع بھی زندہ پتھر تھا، آمین۔ مر گیا، اور مرنے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو زندگی دے گیا، اور مرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو زندگی دے گیا، آمین۔ اور وہ آج بھی زندگی دے رہا ہے، آمین۔ وہ 7 کلیسے زمانے میں چل پھر رہا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ٹائم ریویلیشن، آپ کے وقت کا مکاشفہ، آپ کے وقت کا کلام، لائنوں کا نہیں بلکہ لائنوں کے پیچھے جو چھپا ہے ریویلیشن، وہ کلام، وہ آپ کو زندہ کرے گا، وہ آپ کو زندہ پتھر بنائے گا۔ آپ کو پھر خدا یہ نہیں کہے گا کہ تو لگتا تو زندہ ہے پر ہے مردہ، کیونکہ جو زندہ ہے وہ خدا کو پتا ہے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کے ساتھ۔ پریز گاڈ۔